Hello dear learners, hello dear champs, welcome back to Phoenix EDU. I'm back with the second chapter of your prescribed text from the Bhagavad Gita section, which is the eternal Indian ethos and the Gita. So as we have already discussed a little bit of what is it, what are ethos? Ethos means values, right? So today we are going to talk about the eternal as in never ending, long lasting Indian values and how are we associating it with Gita, or maybe Gita has guided us to follow those values, right everyone? So let's get started. So we are going to talk about, like we already discussed yesterday, that the Gita is a guide for our life. It keeps on guiding our lives here and there every now and then, right? So we already discussed it yesterday. We also discussed that Gita stands for everybody, irrespective of religion, country, caste, race, etc. It is for everybody. Right everyone? So Gita is for everybody, for everything, right? So anybody who understands it would eventually delve into the essence of Gita. Now what is the first, this again is an essay. Now being an essay, this also has an introductory part to it. This is going to talk about 8 essential lessons that we need to inculcate within ourselves as we read Gita. So those 8 essential essence of Gita, the values of Gita, and how is it helping us. Now the introduction starts that India has been known for various reasons, for its tradition, culture, language, behavior, harmony, cordiality. So you have the very first line of your essay which has cordiality. Cordiality matlab kya? Ki we have this cordial nature to coordinate and work. No matter if somebody has asked for it, like all of us have observed that if there's something happening in our neighborhood, we'll easily reach out to help them out, right? That is our culture, that is our values, that is our tradition. Right. Likewise, we have the second word that you might find difficult in the essay, that is solidarity. That we do try to align, we try to console people, we try to stand by them no matter if they have asked for it or not. Such are our values, and we are getting such values within us. Now that the world has started appreciating such values in Indians, we should also try inculcating it even more, because giving it away is not the solution, right? So we have the Indian ethos. Values include, the Indian ethos and values include culture, knowledge, prosperity, peace and harmony. Now Mark Twain, a very famous writer, stated India as the cradle of the sex, as in a place where there are different kind of people. It is the foster mother of the human race and the mother of history. The Bhagavad Gita, now you should be remembering that we studied just in the previous lecture that Bhagavad Gita is taken out of Mahabharata. Mahabharata is one of our famous epics. Indians, or rather India, has 2 epics, and one is Ramayana and second is Mahabharata. The Ramayana that we have is based on the Ram story. Mahabharata has multiple characters in it. It is multiple people's story, but what is it actually talking about? It is talking about the battle of Kurukshetra. So Gita also originated from the in the battlefield, right? We all must remember this. Now coming to that, we'll have also that India is always there to help people out. Likewise, India has helped the world with its 2 epics, which is Ramayana and Mahabharata, through the message of understanding the global civilization. ठीक है, इंडिया ने अपनी दोनों एपिक्स से ग्लोबल सिविलाइजेशन को समझने के लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाए हैं.
तो वो ग्लोबल सिविलाइजेशन क्या हम बात कर रहे हैं भाई, रामायण प्रोबेबली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, जहाँ पे वन पर्सन लाइक वन ग्रुप ट्राइज टू टेक ओवर द अदर ग्रुप. देन द सेकेंड इज महाभारता, वेयर वी फाइंड पावर स्ट्रगल विद इन प्ले. सो अंदर अंदर झगड़े चल रहे हैं महाभारत में. उसी में से हमारी ये भागवत गीता है, जिसके अंदर टोटल 18 चैप्टर्स हैं. ना नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वेद व्यास जी ने कहा था, ठीक है, वेद व्यास जी ने कहा था कि जो चीज़ें महाभारत में हो रही हैं वो कहीं भी हो सकती हैं, जो महाभारत में नहीं हुई वो कहीं नहीं होंगी. विच इज़ ट्रू. वी सी दैट द पीपल आर लाइक द पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली, दे आर फाइटिंग. Now we see that happening around us. There are so many situations that are to be understood. So Ved Vyas quotes that whatever is found here, as in the Bhagavad, in the Mahabharata, can be found elsewhere, but what is not found here cannot be found anywhere else. Now, what is the focus of this essay? As I already stated, it is going to talk about 8 essential values that are being given away by the Gita. 8 essential values that are being given away by the Gita to understand and guide our lives. Right, everyone? So let's start with the first one, which is the knowledge tradition. The knowledge tradition. बहुत सिंपल बात है, हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बोला जाता है कि भाई गुरु शिष्य, अगर कहीं किसी को देखना है सीखना है तो इंडिया से सीखो. यहाँ पे गुरु शिष्य मतलब शिष्य जो है गुरु को सबमिट करके पढ़ता है. तो अगर एक इंसान को सीखना है समझना है तो उसके पास होनी चाहिए क्यूरियोसिटी. इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं नॉलेज ट्रेडिशन. नॉलेज ट्रेडिशन भी हमें श्रीमद् भागवत गीता में देखने को मिलता है कि भाई आपके पास होनी चाहिए क्यूरियोसिटी. व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी? द एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द आंसर. ठीक है, तो नॉलेज ट्रेडिशन गुरु शिष्य रिलेशनशिप में ये बात करी जाएगी. नॉलेज ट्रेडिशन में ये बात करी जाएगी कि आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए. अगर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे. और इंडिया के अंदर दिस हैज़ ऑलवेज बिन नॉर्मल, राइट, कि पीपल वुड रीच आउट टू द वाइज मैन, पीपल हु हैव हैड देयर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस. उनके पास रीच आउट करेंगे, उनके पास रीच आउट करके उनसे लेसन्स लर्न करेंगे एंड देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, ये हमारा कल्चर हमेशा से रहा है कि भाई हम सेजेस के पास सीखने जाएंगे, हम जो भी एक्सपीरियंस है हम उसके पास सीखने जाएंगे. ये तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम आए तो ये सब बन गया टेड टॉक. ठीक है, कि वाइसेस एंड सेजेस से वेस्टर्न कल्चर ने इसको बना दिया क्या, टेड टॉक. वरना हम इंडियंस के पास में ये वाली क्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. ठीक है, बट इवेंचुअली थिंग्स आर डिनाइंग, दे आर कमिंग to the other way. So possibly that we need to learn and remember that Gita has always asked the learner to understand that you must have curiosity, you must have dedication and humility. Only then can you learn, right? So here we have what is core concept of knowledge tradition. That is, knowing through curiosity is the finest form of knowledge. So when you kept questioning, जब आप बचपन में हर चीज़ में क्वेश्चन करते थे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं. जब से आपने लोगों से क्वेश्चन करना कम कर दिया, तब से आपने सीखना भी कम कर दिया. इसीलिए टाइम एंड अगेन आपको टीचर्स गाइड करते हैं और बोलते हैं बच्चों नहीं समझ में आए पूछो, कुछ क्वेश्चन आए पूछो, क्योंकि टीचर्स को पता है, गुरु को पता है आपके कि भाई हमारे बच्चे को सीखना है तो उसको पूछना तो पड़ेगा. हम तो सामने से आके नहीं समझ पाएंगे कि कितना समझ में आया, राइट. देन हाउ टू एक्वायर नॉलेज, देर आर स्टेप्स, देर आर वेज टू डू इट. कि सर्व द वाइज, जो समझदार है उसको पहले समझो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप सच में कुछ सीखना चाहते हो. ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो सीखना, आप सिखाओ ना, नहीं, लगना चाहिए. आप एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. आई कीप ऑन गिविंग दिस एग्जाम्पल कि व्हेन यू हैव योर बेसिस क्लियर, बेस अगर आपका किसी भी कॉन्सेप्ट का क्लियर है तब तो हम आपको आगे कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ा पाएंगे.
तो ठीक उसी तरीके से आपको एक वाइज इंसान को पहले आप सर्व करो। सर्व मतलब ये नहीं कि उनके घर में खाना पीना बनाओ, साफ़ सफाई करो। सर्व एज इन उनको समझो और उनको जहाँ तुम्हारी मदद चाहिए एलिजिबल बनो उस चीज़ के लिए कि येस यू वांट टू लर्न समथिंग एंड देयरफॉर यू आर देयर, राइट। नेक्स्ट यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस। नोबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट कि अच्छा ये बच्चे को ये परेशानी हो रही है, लेट मी एंटर इनटू इट। नहीं, कोई भी ईजिली नहीं समझ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, touch their feet. Now when we say touch their feet, that doesn't mean you have to walk to your teacher and touch their feet and say please help me understand the concepts. That's simply that you'll have to submit. आपको मानना पड़ेगा, आपको मान लेना है कि हाँ ये हमसे समझदार है, ये हमें पढ़ाएंगे और हम सीखने वाले हैं, ठीक है। touch their feet मतलब submit yourself, bow down in front of them because you are the one who has to learn. Right, so next we have the Arjuna he surrendered himself. He said कृष्ण जो आप बोलेंगे ना वो ठीक, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु मान लिया, जैसा आप कहेंगे जो आप कहेंगे मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है। I am your disciple, I have submitted myself to you, please direct me, मुझे दिशा दिखाइए। ट्रेडिशन ये कह रहा है knowledge is procured with selfless, undoubtable and pure heart। कभी ऐसे नहीं कि चलो गुरु की ज़रा चेक कर लेते हैं इनको कुछ आता भी है या नहीं, ऐसे थॉट के साथ जाएंगे तो हमारा सीखना मुश्किल होगा। बस इस चीज़ से ऊपर उठना है बच्चों। अब इस नॉलेज ट्रेडिशन में, ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का प्रिंसिपल किसने बनाया था? बद्रायन ने, ठीक है। देन गुरु शिष्य रिलेशनशिप के लिए 4 लोगों के नाम दिए हैं कि श्री राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। श्री राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। लॉर्ड कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि सांदीपनि। शबरी के गुरु कौन थे? मातंग ऋषि। देन मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सी दिस इज़ कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी कुड नॉट प्रिडिक्ट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी माइट एनकाउंटर, बट वील हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड जितना हमें लग रहा है पॉसिबल है बेस्ड ऑन द सैम्पल क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड, हम उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो नॉलेज ट्रेडिशन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, दैट इफ़ यू वांट टू लर्न यू हैव टू कैरी अ प्योर हार्ट, शुड instill the curiosity in you. You should be curious about things, only then will you be able to learn, right? Next we have the second teaching that is essential for all of us to understand, जो हम कल भी कर चुके हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब में है, हर जगह है। So that is what omnipresence of Almighty means, कि भाई भगवान एक ही हैं, Almighty is one, and if all of us are coming from that one soul, why are we being unkind? हमें ये भूलना नहीं है कि इस दुनिया को बनाने वाले द क्रिएटर, इस दुनिया को चलाने वाले द सस्टेनर, एंड इस दुनिया को ख़त्म करने वाले डिस्ट्रॉयर, सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और ये कौन है? हमारी डिवाइन एनर्जी, ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनी पोटेंट गॉड। ये गॉड हर जगह प्रेजेंट हैं और ये गॉड हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, when you'll read the essay you'll understand that उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि if God doesn't want anything to move, the thing cannot move no matter what the situation is। तो कभी इस बात का घमंड ना करें कि आपने कुछ किया है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जी ने कुछ किया है या आपसे कुछ करवाया है, ठीक है। सो गॉड इज एवरीवेयर। सो कोर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, वासुदेव इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज सोक्ड इन गॉड। सब कुछ भगवान में है और भगवान सब में है, ठीक है। अब यहाँ पे परवेसिवनेस, गॉड ड्वेल्स इन एवरी पार्टिकल, ही इज़ द प्रिमिवल, अनबॉर्न एंड ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ गॉड्स, जिनको हम मतलब गॉड इज़ फॉर्मलेस और हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। हम जिन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं ये भगवान वो भगवान, उनके भी भगवान हैं, वो हैं हमारे ओमनीपोटेंट गॉड, गॉड विदाउट फॉर्म। इट्स जस्ट दैट वन डिवाइन एनर्जी दैट इज़ गाइडिंग,
right? If you want, you could take the screenshot. Next, now God is the causative factor, as I already explained कि the God is the one who has created the place, who is sustaining the place and who is going to destroy. तो कभी इस पे घमंड मत करना. तुम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं, I am the one, now I have done this so nobody will be able to get away from it. जी नहीं, आपने नहीं किया है. इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाओ. आपने कुछ नहीं किया है, आपसे काम करवाया गया है. किसने करवाया है? That Almighty has made you do it. Key action, we must keep this feeling in mind and treat everyone with kindness. जब हम सब एक ही हैं तो किस बात के डिफरेंसेस कैरी कर रहे हैं? कल के क्लास में भी हमने यही पढ़ा था. नेक्स्ट इज कि all of us have the divine energy within us. Divine energy यानी कौन? The God. Almighty resides in us. अगर भगवान मुझ में रह रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में. ठीक है, बचपन से हम लोग हमारे वैल्यूज़ में हम ये सुनते आए हैं कि मन मंदिर है. तो जब मन मंदिर है तो मन को साफ रखो. भगवान अंदर रहते हैं, हमारा बॉडी मंदिर है, हमारा बॉडी टेम्पल है, हमारा बॉडी एक होली प्लेस है. एक होली प्लेस है तो मतलब हमें अपने आप को साफ़ रखना है ना. साफ़ मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिज़िकल क्लीनलीनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल एंड इमोशनल क्लीनलीनेस. किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, अच्छे कंडक्ट करो, साफ़ सुथरे रहो, अच्छे बिहेवियर, अच्छे प्रैक्टिसेस रखो, अच्छे हैबिट्स मेंटेन करो. बस ये भी एक थर्ड लेसन है. इंडिविजुअल सोल इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी. Remember, my soul is a temple. ठीक है, तो अगर टेम्पल है तो टेम्पल तो साफ रखा जाएगा. सो हियर इज द कोर कॉन्सेप्ट फॉर दिस. द इंडिविजुअल सोल इन एवरी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ मी, दैट इज द ऑलमाइटी. हर किसी में, मेरे अंदर भी कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं? द ऑलमाइटी. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सुप्रीम इज रिसाइडिंग इन अस. Our body is a temple. We must maintain its purity and sanctity. हमें मेंटेन करनी पड़ेगी इसकी क्लीनलीनेस, इसकी प्योरिटी. खा क्या रहे हैं उसको भी मॉनिटर करो, सोच क्या रहे हैं उसे भी मॉनिटर करो. साफ़ सुथरा खाओ, साफ़ सुथरा प्रैक्टिसेस, हैबिट्स अच्छी रखो, खाना अच्छा खाओ और साथ ही साथ अच्छा अच्छा सोचो भी. तभी तुम्हारा एक्चुअली में जो टेम्पल है वो टेम्पल की प्योरिटी मेंटेन रहेगी. What is to be cultivated? क्या प्रैक्टिस करें? क्योंकि हमें अब पता चल गया कि अंदर तो भगवान है. अब करें क्या? प्योर फूड, ट्रू बिहेवियर, पायस थॉट्स, ट्रूथफुल वर्ड्स एंड ऑनेस्ट एक्शंस. रिजल्ट क्या होगा? दिस बिलीफ. अब देखो, अगर हम ये चीज़ सोचने लगे हमारे अंदर भी भगवान है, सामने वाले के अंदर बोला ना ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो सामने वाले में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो हम सब तो एक ही है ना. तो हम झगड़ क्यों रहे हैं? अगेन वी आर गोइंग टू फोस्टर, वी आर गोइंग टू प्रमोट लव, गुडविल, कंपैशन एंड इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स. अब जब इक्वालिटी की बात आई है, ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एक और मैसेज दैट अगेन बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से जानते हैं, द इटर्निटी ऑफ द सोल. हमारी आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ नहीं होता. इट्स ऑलवेज द बॉडी दैट चेंजेस. आत्मा का क्या है? सोल आज है, कल किसी और बॉडी में जाएगी. तो हमारी जो बॉडी है इट्स पेरिशेबल, वो समय के साथ चली जाएगी. और इस चेंज को कौन ऑब्जर्व करेगा? हमारी सोल, द इटर्नल सोल. तो सोल हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, बट क्या सोल को बातें याद हैं? जी नहीं. याद कौन रख रही है? हमारी बॉडी. तो ये याद रखते हुए हमें ये मैसेज भी याद रखना है कि सोल इज़ नेवर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज़ मोर लाइक योर एनर्जी. एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एग्जैक्टली लाइक दैट हमारा सोल कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट विल कंटिन्यू टू स्टे नो मैटर हाउ लॉन्ग. डन. Now what's the core principle again? What I've already stated. The body is perishable while the soul remains constant and eternal. Eternal, never ending. The soul's nature, it is never born nor does it die. It is unborn, ever enduring, eternal and ancient. पुराने से आ रही है, अभी भी हमारे अंदर है. वो सोल को अभी भी याद नहीं है कि पहले उसने कौन सी बॉडी, कैसी बॉडी देखी, चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, पर सोल को कुछ याद नहीं है. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रास्ट. बॉडी, माइंड, थॉट्स एंड नेचर आर फ्लीटिंग एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. हर एक चीज़
चेंज कर रही है, जितना हमारे फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं, हमारी नॉलेज चेंज कर रही है, हमारा अपीयरेंस चेंज कर रहा है, हमारा बॉडी चेंज कर रहा है, हमारा थॉट्स चेंज कर रहा है, हमारे वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, पर सोल इज़ जस्ट द सेम। मतलब जहाँ सोल रिसाइड कर रही है वो ही चीज़ सब चेंज हो रही है सुबह से शाम होते होते। अभी आई एम समथिंग, इन नेक्स्ट 10 minutes आई बी अ लिटिल डिफरेंट। ये सब कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? माई बॉडी इज़ एक्सपीरियंसिंग इट, my soul is only seeing that things are changing but is never going to remember things, right? So what is the inside? The soul is only unchangeable element. तो किस बात का गुमान है तुम्हें भाई? सिर्फ सोल है जो अनचेंजेबल है, जो विटनेस कर रही है चेंज को। तो तुम क्यों इस बात का टेंशन लेते हो? क्यों ये सोचते हो कौन क्या सोचेगा? जब जिसकी वजह से, जिस डिवाइन एनर्जी से तुम चल रहे हो वो ही नहीं है, तो तुम अपने अच्छे काम करो। दैट्स इट, हैव अ सब्लाइम लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज़ इनकारनेशनिज्म। नाउ इनकारनेशनिज्म मतलब क्या हो गया? इनकारनेशन, ऑल ऑफ अस नो कि भाई भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे, आएंगे। हमें पता है विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे, चाहे वो वराह का हो, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वो कुर्म हो, चाहे वो आपके राम और कृष्ण एट्सेट्रा, जो भी हैं। 10 अवतार आपके इम्पॉर्टेंट हैं अगेन याद रखने के लिए। तो ये इनकारनेशनिज्म में क्या बात करने वाले हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को वापस लेके आने के लिए भगवान वापस आपके सामने। देखो अभी तुम बोलोगे कि अभी तो हमने बोला कि भगवान हम सब में है, तो फिर ये क्या बात हो रही है? बच्चों ये समझो, भगवान तब आएंगे और दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो तुमने तो रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं आ गया। नाउ आई विल बी वर्किंग फॉर व्हाट यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। तुम्हें लेकिन अपना हमेशा ये बिलीव बना के रखना है कि भगवान है, ऑलमाइटी है, दैट डिवाइन एनर्जी इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट। क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी जब भी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी वो आएंगे, और अगर आप नेगेटिव पाथ में होंगे तो आप पे भी भारी पड़ेंगे। तो इनकारनेशनिज्म में बात हो रही है कि भाई जब जब नेगेटिविटी बढ़ेगी गॉड विल कम बैक। व्हेन गॉड इनकारनेट्स, कब आएंगे? व्हेन एवर देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ धर्म एंड अपराइजिंग ऑफ अधर्म। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म कम होगा तब भगवान का आना शुरू होगा। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनकारनेशनिज्म? टू प्रोटेक्ट द गुड एंड डिस्ट्रॉय द विकेड, एज इन द बैड। अच्छी चीज़ों को बचाना और बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आएंगे। एंड टू एस्टैब्लिश धर्म। व्हाट इज़ धर्म? द राइट things, the right path, the purpose that we all are born with is to be realized to us. Now what's the message? God offers suitable solutions by taking a befitting form. जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे फॉर्म में भगवान हमारे सामने अवतरित होंगे, आएंगे तो फिर वो अपना काम करके जाएंगे। क्या होगा काम उनका? धर्म को एस्टैब्लिश करने का काम। Done. Hope. We should not feel frustration or despondency as God is our unseen pillar of strength. कभी ऐसा मत सोचो अकेले हो, बिलीफ बनाए रखो। हो सकता है इससे भी बुरा हो सकता था, पर नहीं हुआ ना, क्योंकि तुम्हारे उस बिलीफ ने तुम्हें बचा के रखा, तुम्हारे पेरेंट्स के, तुम्हारे वेल विशर्स के, राइट? नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाई सेंस ऑफ इक्विनिमिटी। देखो अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। हमें ये याद रखना है कि हमें दोनों में बैलेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ले आना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना। अगर आज इफ़ आई एम सक्सेसफुल आई शुडंट गेट इट ऑन माई हेड। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मेरे सामने तो अब कोई टिक नहीं पाएगा। नहीं, आज समय तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। आज रात है तो कल अंधेरा भी होगा, कल उजाला भी होगा। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज रात है तो कल दिन होगा। और अगर अभी आज दिन है तो कल अंधेरा होना है, रात होनी है, हार्डशिप्स आएंगे। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। यू विल हैव टू होल्ड अ बैलेंस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैव बिन प्रैक्टिसिंग इट। चेहरे पे वो चीज़ उन्होंने कभी ऐसा नहीं, एक्साइटमेंट है तो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, नहीं, दे विल जस्ट लुक न्यूट्रल। ठीक है? सो यू विल हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, गुड एंड बैड, हैप्पी टाइम्स एंड सैड टाइम्स। इट्स ओके बिकॉज यू हैव टू कीप मूविंग।
डू नॉट स्टॉप। अगर आप ये चीज़ों से अफेक्ट होने लग गए, योर पर्पज़ ऑफ लाइफ, यू आर लूजिंग इट, क्योंकि आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ नॉट दैट शॉर्ट। मे बी यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग थिंग्स, गुड, डू सेलिब्रेट, but do not celebrate it to such an extent as if this is the last one. No, you have a long way to deal with. You have your purposes ahead of you. This is just another milestone for it, right? Meaning, viewing success and failure with an even mind is called योग. तो योग यही बोला है कि we have to maintain a balance, and equilibrium is to be stated. What is the highest state? The difference between joy, sorrow, respect and self vanishes. क्योंकि अब आप सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, आपको समझ आ चुका है यार ये सब मोह माया है, आज है कल नहीं है, सब बदलेगा, समय बदलता है, सबका बदलेगा, मेरा भी बदलेगा, तो इट्स ओके यार, ओके जो हो रहा है सब ठीक है, बट यू हैव टू स्टैंड टॉल to your purpose of life. To being good, you have to follow the right path, right? So what is action? Perform your duty, abandoning attachment. Detachment practice करो। हर एक चीज़ से अफेक्ट नहीं होना है, बस यही कह रहे हैं, हर एक चीज़ से अफेक्ट होना नहीं है, ठीक? What is the benefit? Equanimity works as a shield against our bewilderment. It is a highway to a happy लाइफ। हमारे परेशानियों से, हमारे परेशान होने पे, ये सारी सिचुएशंस के सामने ये हमारे लिए एक ईजी पाथ है। भाई हम अनअफेक्टेड हैं, चलो चलते रहेंगे। वो है ना हिंदी में कहावत, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हाथी चलेगा एंड डॉग्स आर बार्किंग, नहीं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यू शुड रिमेन अनअफेक्टेड। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू मस्ट नॉट अफेक्ट you until and unless it is your duty to be affected by it, right? Next is inclusiveness. Here you have the freedom to choose your God, the form of God you want to worship. Nobody is going to put something onto you कि नहीं भगवान तो ऐसे ही है, तुम्हें क्या होना चाहिए, बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। ये तीन चीज़ तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारा रास्ता टुवर्ड्स गॉड इज क्लियर। ना व्हाट इज गॉड? You should have mental peace. That's it. That is it. Core concept: everything full of opulence, radiance and might originated from the light of God. Everything that is happening has come down from the ultimate God. फिर तुम किसी भी रास्ते, किसी भी तरीके से पूजा करो, truthfully करो, devotion के साथ करो, and you are good to go. God affirms that faith of a devotee in whatever celestial form they seek to worship. भगवान समझ जाएंगे कि हाँ भाई तुम पूजा कर रहे हो, डिवोशन के साथ है, सही डिवोशन है, सही रास्ते के लिए है, तो गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प यू नो मैटर व्हाट। यूनिक ट्रेट: इंडियन कल्चर ऑफर्स द फ्रीडम टू चूज़ वंस फेवरेट डीटी एंड वे ऑफ वर्शिप। तो हमारे पास सबके पास फ्रीडम है कि हमें कैसे, क्या, किस तरीके से वर्शिप करना है। सो दस इंक्लूसिवनेस हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्शिपिंग, ठीक है? तो इंक्लूसिवनेस में आप क्या बात कर रहे हैं, ये भी गीता ने कहा है कि भाई किसी को फोर्स मत करो कि तुम्हें इसी भगवान की पूजा करनी है। क्यों करनी है? उसको जिसमें विश्वास हो वो पूजा करने दो। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ड्यूटी, विच मीन्स दैट यू शुड नेवर स्टॉप। दुख आएगा, सुख आएगा, परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होंगे, पर आपको अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा वर्क करते रहना है। So that means no matter what the situation is, hard है, soft है, emotional imbalances है। For example, पढ़ाई करते करते मन नहीं लग रहा, फ्रेंड से बात करने की इच्छा हो रही है, ड्यूटी क्या है इस समय? पढ़ाई का टाइम है ना, पढ़ो, ठीक है? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। Our own duty is for our spiritual good. Better to die in your own dharma or duty. It's okay. अपना काम करते करते, तुम बोलते हो ना मैम मर जाएंगे इतना पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं, ड्यूटी वही है, करो, ठीक है? पर्सपेक्टिव: लाइफ इज़ नॉट अबाउट डिस्पेयर। दुख बनाने का टाइम नहीं है, ज़िंदगी इसके लिए नहीं है। पता चला आज हम हाँ चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, कल फिर रिग्रेट कर रहे हैं, अरे यार उस दिन बात कर रही थी ना, इस वजह से रह गया, और देखो आज उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। होने ही मत दो ना, ये होगा कैसे? तुम्हारी ड्यूटी थी पढ़ना, तुमने पढ़ लिया होता तो क्या ये सिचुएशन आती? नहीं आती। Life is not about despair, it is to laugh and live and fight courageously against odds. Distraction से भी ऊपर उठना है,
ग्रो विथ इंटैक्ट ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी एंड अनब्रोकन फेथ। ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान ने तो मेरी कभी मदद ही नहीं करी, क्या पता है इससे बुरा टाइम आता, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, ठीक है। और अपनी ड्यूटी पे बने रहो, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, फेथ रखो कि हाँ जो हो रहा है एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। हर कोई तुम्हें यही कहता है, राइट। देन फाइनल पॉइंट, द गीता एम्पावर्स एवरीवन टू स्टैंड स्ट्रांग। सबको बोल रहा है कि भाई सब लोग स्ट्रांग रहो, क्यों, चैलेंजेस आए हैं तो आएंगे ना, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट चैलेंजेस। हाउ विल यू इवन लर्न कि चैलेंजेस है या ये हमारे हैप्पी टाइम्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देर हैव बिन एन नंबर ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे तुमने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ हैव टॉक्ड अबाउट देयर सक्सेस स्टोरी एंड देन दे हैव स्टेटेड कि वी हैड बीन थ्रू सो मेनी स्ट्रगल्स। और कुछ स्ट्रगल का सुन के तुम्हें हंसी आई होगी, कुछ स्ट्रगल का सुन के तुम्हें हंसी आई होगी। रीज़न क्या था? जस्ट दैट कि उनको पता ही नहीं है ना कि इससे बुरा भी क्या हो सकता है, तो उनको लग रहा है आवर स्ट्रगल इज़ द रियल स्ट्रगल, right? So with that I bring an end to the series of Bhagavad Gita. The 2 units have been covered. I hope you all have a good reading time when you sit with your essays. Do not just enter into the examination hall without reading the essays, because this is going to be part of your MCQ and you'll have to completely understand. So now if you feel that this was worth your time, give it a like, subscribe, comment and share. Thank you everyone.